Guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 9.15. Chapter name is cost of capital, and the specific topic which we are related with is weighted average cost of capital. I would like to share one thing. Whenever you are calculating average, it cannot be you won't be able to calculate average of any single amount. So there must be several amounts with which you will be able to calculate average. And when we are talking about capital, it means there might be several types of capital present in the question. So for the time being, we are just repeating the main procedure of this question, or main theme of this question is capital. Capital is any amount which is provided by owners of the company or organization, and that amount would be invested by the owners into the business. Any amount which is invested by the owners into the business is called capital. Let's say they are not using their own resources, they have taken loan, then it would be called debt financing. And if they are using their own resources and amount which is arranged is to be invested into the business, that kind of financing would be called equity financing. And as earlier we have seen that equity financing may be taken from the common public. That type of investment would be called common stock. And if investment is taken from preferred shareholders, it would be called preferred stock. And in case if investment is arranged through retained earning, then it would be called retained earning stock. Common stock means you have asked common public to invest in your company and they are ready. And the conditions and terms would be very simple. If company is earning profit, part of that profit would be distributed among these common shareholders. And in case if company is facing loss will also be beared and faced by these common shareholders. Terms and conditions for preferred stockholders would be little different. They might be sharing profit, but at the time of loss they might not be sharing loss in the same way. That is why they are considered to be preferred stockholders. Retained earning mean if company is earning some profit, that profit is not distributed among shareholders. A part of that profit is retained, or the part of profit is still in hand to the organization. So that part of profit is not distributed. As company in future will need, they will use this save amount for organizational operations, और ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स विल बी फिल्ड विद दिस रिटेन्ड अर्निंग. जो पैसा आप डिविडेंड का शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अपने पास रखते हैं और उस पैसे को इन फ्यूचर यूज़ करेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस को या ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को वहाँ से पूरा करेंगे. इफ फाइनेंस इज अरेंज थ्रू डेट, दैट इज़ कॉल्ड डेट फाइनेंसिंग. द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी इज़ व्हाट? इन केस ऑफ इक्विटी you are sharing your profit. You means organization is sharing profits with the shareholders. Profit, what word I'm using, just concentrate, profit. In case of debt financing, you are not sharing your profit, rather you are giving your providers a fixed rate of interest. The difference is what? Profit would be given to the shareholders, interest would be given to the debt financing, and there will be a fixed rate. Here there might be profit, there might be loss, there might be high rate of profit, there might be less rate of profit. So profit sharing basis, when you are talking about, it would be related to equity financing, and fixed rate of interest would be related to debt financing. Normally it's not the higher rate, it would be fixed with a little smaller or shorter rates of interest. Or agar, let's say if company is going to be bankrupted, if at that stage equity shareholders will not be having any claim upon assets. If company is bankrupted, means their own amount of common shareholders, their own amount will also be used to pay debts. While in case of bankruptcy, debt
providers mean the person or organizations who had provided us loan, our creditors will always be getting their due amount. ये थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों के अंदर. और when you are adding debt financing with equity financing, इसको capital structure बोलते हैं. Secondly, important word we are looking at is WACC, weighted average cost of capital, and what I have said, average would not be calculated for the single amount. That is why when you are discussing capital, there are so many types of capital over here and you are needed to calculate their average. Okay, for average, in earlier questions we have decided that pro forma would be fixed. No matter what terms and conditions would be discussed in the question, but we will use the same pro forma. And for that purpose, very first step is to create capital structure. And as you know, capital structure would be having debt financing, it may be having common stocks, it may be having, one second please, common stock should have been written in downward line. All right, after common stock you may have preferred stock, and then you are related with retained earning. I would like to make a comparison between retained earning and common stock. So why we are making comparison? In case of common stock, what will happen? You will issue shares and receive amount from common shareholders. And in case of retained earning, what you are going to do, you are not issuing shares to outsider. Rather, the amount which was not distributed among shareholders, you are using that cash in hand, cash still held within the organization, you are using that amount for your operating operations. अब मुझे आप बताइए कौन सी ज़्यादा सूटेबल बात रहेगी. एक ये है कि यू नीड अमाउंट एंड यू आर आस्किंग आउटसाइडर्स, ऑर्डिनरी पब्लिक टू प्रोवाइड यू द अमाउंट. आपको 1000 रुपया चाहिए और आपके पास ऑप्शन है, यू कैन आस्क फ्रॉम योर relatives and you can ask from your sister or brother. When you are asking amount from outsider, it means there is a risk, and if you are not paying that amount on time, it could dilute your reputation. It might be a problem, it might be a social problem. और इस सेंस के अंदर व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस? क्या आप बाहर के लोगों से पैसा लेंगे? दूसरी आपके पास ऑप्शन है कि आप ही की अपने घर के अंदर अपनी सेविंग है, चाहे वो भाई की है, बहन की है, फादर की है, घर के अंदर सेविंग है जो कलेक्टिव सेविंग है और आपने उसको यूज़ नहीं किया हुआ. इस सेंस के अंदर आप समझिए वो रिटेन्ड अर्निंग है. और जब आप बाहर के लोगों से पैसा लेंगे, यू विल हैव टू शेयर योर प्रॉफिट्स विद दम. लेकिन व्हेन यू आर यूजिंग रिटेन्ड अर्निंग, तो आपकी प्रेफरेंस होगी कि कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग के अंदर ज़्यादा बेटर कौन सी ऑप्शन है? दैट वुड बी रिटेन्ड अर्निंग. इन दैट केस यू डोंट हैव टू पे part of profit to the individuals, because financing has been arranged within the organizational resources. अपने ही घर से पैसे आप ले रहे हैं तो आपको पेमेंट कोई एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी. आपने ध्यान से इस बात को समझना है कि इफ़ कंपनी इज हैविंग टू ऑप्शन टू इशू शेयर्स टू द कॉमन स्टॉक एंड दे कैन यूज रिटेन्ड अर्निंग, दे विल नेवर इशू कॉमन स्टॉक, दे विल ऑलवेज बी यूजिंग रिटेन्ड अर्निंग. अब आपने बात समझ लेनी है इन अ क्वेश्चन. यहाँ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो यही है कि इफ़ इन क्वेश्चन कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग बोथ आर गिवन, यू विल चूज प्रपोर्शंस, अमाउंट्स, परसेंटेजेस ऑफ रिटेन अर्निंग, नॉट फॉर द कॉमन स्टॉक. ओके, ये आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया. और अब चूँकि इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा था, तो यू कैन मेक इट कॉमन. कैपिटल स्ट्रक्चर से आगे यू आर गोइंग टू राइट अमाउंट्स ऑफ दीज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड दैट अमाउंट वुड बी गिवन इन द बुक. यू आर नॉट नीडेड टू बॉदर अबाउट दैट. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट द वेट्स, और हमने ये डिसाइड किया था वेट्स वुड बी इन टाइम पैटर्न, और वो हम अभी डिस्कस भी करेंगे. और आफ्टर वेट्स व्हाट यू विल डू, यू विल बी राइटिंग कॉस्ट of capital,
cost of capitals, and you are needed to write in terms of times as well. And at last step you will multiply weights with cost, mean last two columns will be multiplied with each other, weights and cost. ऑलराइट, अब आपका काम ये है कि जस्ट सी इफ़ अमाउंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन. थोड़ा व्यू करते हैं अब क्वेश्चन का. सबसे पहले तो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप डेट यूज़ कर रहे हैं, प्रेफर्ड और कॉमन यूज़ कर रहे हैं. रिटेन अर्निंग क्वेश्चन के अंदर नहीं है. और इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, इफ़ इन अ क्वेश्चन कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग आर गिवन, यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ कॉमन स्टॉक कॉस्ट, यू विल बी यूजिंग रिटेन अर्निंग. यहाँ पर मैं एक लाइन मुझे नज़र आई है और मैं चाहता हूँ कि आप उस लाइन की तरफ थोड़ी सी अटेंशन ज़्यादा बढ़ा दें. जो लास्ट लाइन आपको नज़र आ रही है, प्लीज़, रिटेन अर्निंग अवेलेबल एंड डज नॉट एक्सपेक्ट टू सेल एनी न्यू कॉमन स्टॉक. ये डज नॉट एक्सपेक्ट टू सेल एनी न्यू कॉमन स्टॉक, इसको ज़रा प्लीज़ आप अपनी बुक्स पे अंडरलाइन कर लीजिएगा. और यही समझना है हमने. जैसे मैंने कहा था कि देयर आर टू रिसोर्सेज, यू कैन इशू न्यू शेयर्स टू योर कॉमन स्टॉक होल्डर्स. सेकेंड ऑप्शन, you can use your own amount. Retained earning is the own amount, though that amount was the profit, but you haven't distributed that profit to common shareholders. तो प्रॉफिट आपके पास ही रह गया, घर में ही रह गया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रह गया. अब इस क्वेश्चन में भी उसने स्पेसिफिकली कह दिया है कि अगर आप कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग दोनों को कंपेयर करेंगे तो यू विल बी चूजिंग रिटेन अर्निंग एंड नो कॉमन स्टॉक विल बी इशूड. यही ट्विस्ट है बस इस क्वेश्चन का, और आपने ध्यान से इसको फॉलो अप करवा लेना है. नहीं जी, आपके पास अब लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक है. और यहाँ पर आपने करना क्या है, when you are using common stock and if cost of common stock and cost of retained earning is available in the question, you will use cost of retained earning and you will not be using cost of common stock. हाँ, ये है प्रपोर्शन इनकी, तो जाहिर है कि दोनों की सेम चलेगी, लेकिन जो कॉस्ट है वो रिटेन अर्निंग की यूज़ होगी, कॉमन की नहीं यूज़ होगी. पहली बात तो ये है कि हमने इन तय किया था कि वी विल बी राइटिंग अमाउंट्स, लेकिन एक और प्रॉब्लम जिसको हम फेस कर रहे हैं कि अमाउंट इज़ नॉट अवेलेबल ओवर हियर. यहाँ पर आप जैसे चेक कर रहे हैं, देयर इज़ नो अमाउंट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन. यू कैन सी एट लास्ट वर्ड विच इज़ रिटन ओवर हियर, नो अमाउंट हैज़ बीन मैंशनड. तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये अमाउंट्स वैसे भी आपके किसी काम की नहीं होती. जब आप पुराने क्वेश्चन कर रहे थे तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ राइटिंग अमाउंट इज़ टू कैलकुलेट वेट्स. और चूंकि अब अमाउंट्स अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली व्हेन यू विल रीड योर क्वेश्चन फ्रॉम हेयर टू हेयर, देयर वेट्स और देयर कॉस्ट विल आल्सो बी अवेलेबल. अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पर वेट्स हमें दिए हुए हैं. जैसे मैंने आपको कहा, वेट्स और कॉस्ट अवेलेबल होगी. ये टारगेट मार्केट के वेट्स हैं. इट माइट बी पॉसिबल सम अदर वे विल आल्सो बी यूज्ड फॉर वेट्स एज वेल. अब यहाँ पर जो वेट्स दिए हैं, वी विल पिक दीज वेट्स एंड विल पुट आवर वेट कॉलम. सबसे पहले 30 है. फर्स्ट ऑप्शन यू मे हैव टू राइट 30 डायरेक्टली. ये परसेंटेज की सूरत में होगा. और हमने क्या डिसाइड किया था, वी आर नॉट गोइंग टू राइट परसेंटेज, वी विल राइट टाइम्स 30%. उसका मतलब क्या होता है, 30 डिवाइडेड बाय 100. जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये टाइम्स की सूरत में आपके पास आंसर आ जाएगा और आपने पूरा क्वेश्चन टाइम्स की सूरत में ही सॉल्व करना है. और मैंने आपसे कहा था आपके पास ऑप्शन ओपन है. इफ़ यू डोंट लाइक इट जस्ट राइट डाउन 30%. और जब 30 लिखेंगे और सारी प्रपोर्शंस कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमारे पास 4 हैं, इसका टोटल करेंगे. व्हेन यू आर राइटिंग योर वेट्स इन टर्म्स ऑफ टाइम्स दैट, और जब इसका सम करेंगे यू विल गेट सम एज 1. एंड व्हेन यू आर राइटिंग परसेंटेजेस 30%, 50% और 20%, जब आप इसका सम करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 100. बस सिर्फ फ़र्क ये है, परसेंटेजेस का सम वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 100 एंड व्हेन यू आर राइटिंग टाइम्स, सम ऑफ ऑल अमाउंट्स इन टर्म्स ऑफ टाइम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. इसका हमेशा टोटल 1 आएगा, जो हम अभी डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे. अमाउंट्स आपको चाहिए नहीं, यू आर गोइंग टू राइट वेट्स. एंड फर्स्ट वेट वाज रिलेटेड टू डेट फाइनेंसिंग, दैट वाज 30%.
दूसरा आपके पास है प्रेफर्ड स्टॉक, एंड द वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज़ 15%। 15% को आपने टाइम्स की सूरत में लिखना है. फॉर दैट पर्पज 15 डिवाइडेड बाय 100 you will do, and this way you have got the weight of preferred stock. It was, we should align accordingly. Preferred stock is written on third line. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. हमने चूँकि अपनी तरतीब नहीं चेंज करनी, तो हम ये देखेंगे whatever is given in the book we will arrange according to our system. We will always write debt on the first line, common second, preferred third, retaining for fourth line. All right, the third percentage which is given in the question is for common stock, that is 55%. 55 you are going to write in front of common stock. अब चाहे तो यहाँ लिख दें और चाहे तो रिटेन अर्निंग में लिख दें, और उसकी रीज़न क्या है, उन्होंने ये बात आपको बोली है कि जो परसेंटेज भी यूज़ होगी, डज नॉट एक्सपेक्ट टू सेल एनी कॉमन स्टॉक. कॉमन स्टॉक जब है ही नहीं, उसकी जगह रिटेन अर्निंग ही यूज़ होगी. अगर लेट्स से 55% इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम कॉमन स्टॉक होल्डर्स, जैसे कि इस परसेंटेज में उन्होंने बताया है कि वेटेज जो है कॉमन स्टॉक की 55%. इफ़ यू नीड टू गेट अमाउंट फ्रॉम कॉमन स्टॉक, यू विल नॉट बी इशूइंग एनी न्यू शेयर्स टू कॉमन स्टॉक. इंस्टेड ऑफ दैट यू विल यूज़ रिटेन्ड अर्निंग. तो आप इस प्रपोर्शन को रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं. 55 मीन्स 55 डिवाइडेड बाय 100, एंड व्हाट डज दैट मीन, 0.55. ये आप कंप्लीट हो गया. और जो ये वाला 1 लिखा हुआ है, ये तो मैंने खुद लिखा था. अब हम अपनी वैल्यूज़ को चेक करेंगे. द आंसर ऑफ सम ऑफ ऑल अमाउंट्स प्रेजेंट इन वेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1. आपने क्या करना है, जो अमाउंट्स भी वेट्स में लिखी हुई हैं, इफ़ यू विल गेट सम ऑफ दीज अमाउंट्स, sum of amounts present in weight column will always be equal to 1. So how many amounts are present in weight column? First was 0.3, then you will add 0.15, then you will add 0.55. अब इसका टोटल 1 आना चाहिए. अगर 1 नहीं आया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ हमारे से मिस्टेक हो गई है. सो हेयर यू हैव गॉट एग्जैक्टली 1. इट मीन्स ऑल प्रोपोर्शंस आर करेक्ट. आप जब भी वेट लिखेंगे, उनका सम हमेशा 1 के बराबर आएगा. और अमाउंट्स लिखने का पर्पज़ यही होता था कि हमने वेट्स कैलकुलेट करने. इसका मतलब है हमारा वेट्स तक का कॉलम इज़ completed and there is no need to bother about that. And next step is to write cost. ये आपको पता चल गया, cost of capital is our next step, but again we are going to write in terms of time, not in terms of percentage. Like cost of debt is given 7.2%. ये परसेंट दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इसको टाइम्स में चेंज कर देना है. कॉस्ट ऑफ डेट सबसे पहले लिखा हुआ है और आपको दिया हुआ है 7.2%. Here you have got the 7.2, but you are not going to write in terms of percentage, you are going to write in terms of time. Whenever you are converting percentage into times, divide it by 100. और इसका उल्टा भी सोच लीजिए, whenever you are converting times into the percentage, you will multiply. Simple as this. Here you have got the value of cost of capital in terms of times, and that is associated with debt financing. Now let's see what is next for us. The cost of preferred stock estimated to be 13.5%. ये cost of preferred stock है 13.5%. So you were supposed to write in front of preferred stock तीसरे नंबर पे. So here you were supposed to write 13.5. But again matter is same. You are not writing it in terms of percentage. You will be writing in terms of time. For that purpose you will divide it with 100. Here you have got the cost of capital for the preferred stock. Next, cost of retained earning is to be estimated 16%. This is cost of retained earning. अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि cost of common stock is also given. Cost of common stock is 18%, but they had explained does not expect to sell any new common stock. यहाँ पर लास्ट लाइन में डज नॉट एक्सपेक्ट टू सेल एनी न्यू कॉमन स्टॉक. ये नो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने कॉमन स्टॉक को यूज़ नहीं करना, बल्कि उसकी जगह वी आर गोइंग टू यूज़ रिटेन्ड अर्निंग. अब आपका काम सिर्फ ये है कि यू जस्ट फॉरगेट इफ़ एनी परसेंटेज इज़ गिवन फॉर द कॉमन स्टॉक. आपने यहाँ पे भी उसको फॉरगो कर दिया, यहाँ पर भी फॉरगो कर दिया. अब जो कॉमन स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, यू आर जस्ट नीडेड टू फॉरगेट अबाउट इट. डोंट गिव अटेंशन अपॉन कॉमन स्टॉक. उन्होंने खुद ही मना किया.
और आपका अब काम ये है कि फोकस करें रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर जो कि 16% है. So in retained earning column, you are needed to write 16%, and obviously percentage we are not writing instead of percentage. We are needed to write in terms of time. For that purpose, you will divide 16 by 100. This way, you have got all the values of cost of capital according to target market weights. ये पहला एक प्रोसेस है टारगेट मार्केट का, वो आपने कंप्लीट किया. अच्छा है हम इसको पढ़ भी लें. आपके पास जो है रिक्वायरमेंट्स दो तरह की हैं. एक आपने टारगेट मार्केट भी अचीव करनी है, एक हिस्टोरिकल मार्केट भी अचीव करनी है. शायद आगे वो हिस्टोरिकल मार्केट की भी डिस्कशन आपके साथ करें. बहरहाल हमारा मसला हल हो गया. वी वर इन नीड टू हैव वेट्स एंड वी वर इन नीड टू हैव कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वाई? बिकॉज वी आर required to multiply weights and cost. Our columns are completed. So let's start multiplying weights and cost. First it was debt. The weight of debt was 0.3 and we will be multiplying it with the cost of debt was 0.072. Here you have got the value for your debt. First value is related with the debt and you are now going to calculate your next value was for common stock, and since we are ignoring common stock, weight though has been given, cost though has been given, but we are ignoring it because instructions of this question are mentioning that instead of issuing new common stock or new shares to the common stock, we are directly associated and related with retained earning only. हमने कॉमन स्टॉक की तरफ अटेंशन नहीं देनी, सिर्फ रिटेन अर्निंग को फॉलो करना है. तो अब आप कॉमन स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं. नेक्स्ट आपने वेट और कॉस्ट जो प्रेफर्ड स्टॉक का है यू विल टेक एंड विल मल्टीप्लाई. हेयर यू विल हैव वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज 0.15. You are needed to multiply with the cost, that is 0.135. Second value for the preferred stock is estimated or calculated. Now third value is related to retained earning. Cost of retained earning is 0.16. Multiply it with the weight of retained earning which was 0.55. Here you have got the value of retained earning as well. काम हमारा complete हो गया and you are needed to calculate the sum. Okay, so for sum it was very easy for me to apply an formula which is used for the sum in Excel, but instead of that I'm just using simple calculator. So first amount is 0.0216. You will add with 0.02, then you will add 0.08. In this way what you will get weighted average cost of capital in terms of times. Please repeat करें अपने दिमाग में, weighted average cost of capital in terms of time. Just click OK and here you have got 0.12985. ये weighted average cost of capital आपके पास आ गई है. लेकिन आपको यहाँ पर एक स्टेप सिर्फ और करना है और आप बताइए कि आप टाइम्स की सूरत में आंसर लिखना चाहते हैं तो ओके दैट्स ऑल. यू आर नॉट नीडेड टू डू एनीथिंग एल्स. अगर परसेंटेज की सूरत में आंसर मांगा हुआ है तो अब आपने देखें सारी परसेंटेजेस को जब टाइम्स बनाया, एरर को इग्नोर करें, मैं अभी आपको बताता हूँ. जब आपने सारी यहाँ 30% था तो यू हैव कन्वर्टेड दैट परसेंटेज इनटू टाइम्स. फॉर दैट पर्पस यू हैव डिवाइडेड इट बाय 100. सबको डिवाइड कर दिया था 100 पर व्हेन यू वर कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू टाइम्स. अब ये टाइम्स आपके पास आया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है आपने परसेंटेज में. फॉर दैट पर्पस व्हाट यू विल डू, just take this amount and multiply by 100 when you are going to reverse the procedure. Here is your answer in terms of percentage which is 12.985. अब आपने जो weights यूज़ किए थे those were target market value weights. So when you have used target market weight तो आपके पास जो ये weighted average cost of capital आया है ये actually weighted average cost of capital यानी WACC आपके पास आया है. ये अकॉर्डिंग टू टारगेट मार्केट है. तो आपने टारगेट मार्केट के वेट्स लिए थे
अकॉर्डिंग टू, तो आंसर भी आपका टारगेट मार्केट के हवाले से आया होगा। अब आपको जब आंसर चेक करना है तो पहले चेक करते हैं टारगेट मार्केट का मांगी हुई। तो ये बी पार्ट हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है। बी पार्ट में वो आपको बता रहा है टारगेट मार्केट के हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। सो एज वी हैव यूज्ड टारगेट मार्केट वैल्यूज़, यहाँ पे आप चेक कर लें। तो ये बी पार्ट हमारा पहले कंप्लीट हो गया। अब हिस्टोरिकल मार्केट के लिए देयर इज़ नीड टू रीड द क्वेश्चन अगेन। उसमें कहीं ना कहीं वो सेकंड के लिए भी आपसे कहने को बोल रहा होगा। लेकिन यहाँ मेरे लिए क्या आसानी है, व्हाट आई विल डू, आई विल पिक ऑल दीज अमाउंट्स और मैं इन्हीं अमाउंट्स को ही यूज़ कर लेता हूँ। आपको अलबत्ता यू विल हैव टू डू इट ऑल अगेन। मेरे पास सेकंड पार्ट करने के लिए कुछ थोड़ी सी फैसिलिटी अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन के अंदर capital structure is still same, debt, common, preferred, retained, amounts are not given same, weights would be changed, and if weights are changed it means everything else would also be changed। तो यहाँ पर भी चेंज आ जाएगी, हम इसको भी रेज कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो सबके लिए सिमिलर है एज इट वाज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजुअली बी सेम। वेट्स चेंज होंगे और यहाँ पर नए वेट्स आएंगे अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल मार्केट। उसके लिए हम थोड़ी सी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ था, दैट वाज हेयर 18% अकॉर्डिंग टू कॉमन स्टॉक। ऑल ऑफ दीज आफ्टर टैक्स रेट चलें, उसने ये भी बता दिया। नेक्स्ट वो कह रहा है कंपनीज डेट रिप्रेजेंट, ये अगली बात शुरू होगी, कंपनीज डेट रिप्रेजेंट 25%। तो अब जो वेट्स आ रहे हैं ये 25% है एंड यू वर सपोज टू राइट 25%, एंड सिंस वी हैव डिसाइडेड टू राइट इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, तो आप 25 की जगह पर टाइम्स लिखना हो तो यू विल डिवाइड इट विद 100। हेयर यू हैव गॉट 0.25 विच इज़ वेटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग। यहाँ पर आप दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा, न्यू कंपनीज डेट रिप्रेजेंट्स 25%। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक, नेक्स्ट मैटर इज रिलेटेड टू प्रेफर्ड स्टॉक और वो है 10%। प्रेफर्ड स्टॉक रिप्रेजेंट 10%। तो आप प्रेफर्ड की लाइन में आइए और यू वर सपोज टू राइट 10% ओवर हेयर, इंस्टेड ऑफ 10 यू विल डिवाइड इट विद 100 एंड 0.1 टाइम्स you will write, and the next percentage which is given we are reading over here, and the common stock represents 65%। आपको पता ही है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम कॉमन स्टॉक नहीं समझ रहे, विल ऑलवेज बी यूजिंग रिटेन्ड अर्निंग। और आपको यहाँ से मैं एटलीस्ट 4-5 टाइम्स इसकी रीडिंग हमारी हो गई है। डज नॉट एक्सपेक्ट टू सेल एनी न्यू कॉमन स्टॉक। अब चाहे प्रपोर्शन इज़ गिवन फॉर द कॉमन स्टॉक बट वी विल यूज़ इट फॉर व्हाट, we will use it for retained earnings. So this 65% will be used for retained earning. 65% means 65 divided by 100, it would be 0.65 times। अच्छा, अब ये हमने सम पहले ही लिखा हुआ था और वो अपने आप ही इक्वल के बराबर आ गया हुआ है। इट मीन्स हमने परसेंटेजेस सारी की सारी ठीक लिखी हुई हैं। सम ऑफ वेट्स प्रेजेंट इन दिस कॉलम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 एंड वी हैव गॉट द 1। कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स वही पुरानी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर नॉट चेंज्ड, सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाइक 7.2 एंड 0.072 टाइम्स वो वैसे की वैसे लिखी हुई हैं। सो वी हैव जस्ट चेंज द वेट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सिमिलर, proportions and percentages, and last column is what to calculate weighted average cost of capital we have to multiply weights into cost जो आपने टाइम्स की सूरत में लिखी हुई है। ओके, फर्स्ट कैलकुलेशन, फर्स्ट वैल्यू इज फॉर डेट फाइनेंसिंग and you are needed to multiply weights and cost. Weight of debt was 0.25 multiplied by cost of capital which was 0.072. Here you have got the first value for debt, and now you are needed to calculate for preferred stock. Preferred stock weight was 0.1.
its cost was 0.135. Here you have got the second value. And now for third value, what you will do, third value is for retained earning. Its weight was 0.65 and its cost was 0.16, yeah, 0.16. So all multiplication have been completed. Next step is to calculate the sum of what? Results of result of multiplication of weight and cost. First value was 0.018, add it with 0.0135, add it with 0.104. There you have got the sum of multiplication of weights and cost, and you have got the value in terms of time. बड़ा आसान सी बात समझने वाली है. Weights were in times, cost were in times. The multiplication answer will also be in terms of times. यहाँ पर आपका आंसर यहाँ ख़त्म हो जाता है. You may write it like this. और अगर इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट विद परसेंटेज एज वेल, तो आप क्या कीजिए, जस्ट टेक दिस अमाउंट टू कन्वर्ट टाइम्स इनटू परसेंटेज, यू विल मल्टीप्लाई इट विद 100, तो आपके पास परसेंटेज का आंसर भी आ गया. अब इसको थोड़ा सा चेंज करना है. स्टिल इट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ टारगेट मार्केट, इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल मार्केट रेट्स जो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. हम HIST पूरा शायद ना लिखा जा रहा हो, बस इसी तरह से समझ लीजिएगा. इट इज़ पार्ट ए. अब सरप्राइजिंगली वी हैव डन पार्ट ए एट बॉटम. बस हमने क्वेश्चन पढ़ते गए और करते गए. एंड पार्ट बी इज एट अबव. So here we have completed A and B. A part's weighted average cost of capital calculated 13.55. You can check this answer. And part B has been completed. We have calculated weighted average cost of capital according to target market, which is 12.985. ये दो आंसर्स आप चेक कर लीजिएगा, 12.985 और 13.55. In this way we have completed our question. और 9.15 हमने अभी कंप्लीट किया है. ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क ओपनली एनी ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ जस्ट केम इन योर माइंड. और अगर कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं. यू कैन मीट डायरेक्टली एज वेल. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9.15 and surely we will meet again for the solution of any other question. अच्छा, मुझे याद है, आप यहाँ रुक के ना एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि दोबारा अगर कभी मौका मिले तो आप सिर्फ उस स्क्रीनशॉट से भी पता कर सकते हैं. ओके, तो हम दोबारा मुलाकात करेंगे फॉर द सोल्यूशन ऑफ एनी अदर क्वेश्चन. अप टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल्सो रिक्वेस्टिंग टू प्रे फॉर मी एज वेल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफिज़.